سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ہم بہت محبتیں دیتے ہیں، بہت رشتے نبھاتے ہیں، مگر پھر بھی اندر سے خالی رہ جاتے ہیں۔ دل میں ایک سناٹا بس جاتا ہے، ایسا سناٹا جو کسی انسان سے نہیں بلکہ رب سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شاید اللہ ہمیں تنہائی نہیں دیتا بلکہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ آج کے اس روحانی بات میں ہم جانیں گے کیا ہوتا ہے جب اللہ کسی دل کو صرف اپنے لیے چن لیتا ہے۔ کچھ لوگ جتنی بھی محبتیں دیتے ہیں پھر بھی خالی رہ جاتے ہیں۔ وہ رشتوں کو نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، وقت بھی، جذبے بھی، یہاں تک کہ اپنا سکون تک، مگر جواب میں کیا ملتا ہے؟ کچھ لمحوں کی قربت اور پھر ایک لمبی خاموشی۔ وہ ہنستے ہیں، بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، مگر اندر سے وہ ہمیشہ تنہا رہتے ہیں، جیسے ان کے دل میں کوئی خالی پن ہے جو کسی انسان سے نہیں، کسی تعلق سے نہیں بلکہ صرف اللہ سے بھر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا تمہیں کہ تم جتنا کسی کے لیے سچے ہوتے ہو اتنا ہی وہ تمہیں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں سمجھے، تمہاری نیت، تمہاری محبت، مگر ہر بار تم اکیلے رہ جاتے ہو۔ اور شاید یہ محض قسمت نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کچھ دلوں کو ایسا بناتا ہی اس لیے ہے کہ وہ کبھی کسی انسان سے مطمئن نہ ہو، کیونکہ وہ دل دنیا کے نہیں ہوتے، وہ رب کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رشتے آتے ہیں، جاتے ہیں، محبتیں ملتی ہیں، بچھڑتی ہیں، لیکن وہ جتنا کسی کے قریب آتے ہیں اتنا ہی اللہ انہیں واپس اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جنہیں اللہ کے سوا کسی سے دل لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اللہ جب کسی دل کو اپنا بناتا ہے تو وہ اس دل پر کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی، اللہ ایسے بندے کی محبت کو بار بار ٹوٹنے دیتا ہے۔ تم چاہو گے کہ کوئی تمہیں سمجھے، تمہارے احساسات کو محسوس کرے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی فاصلہ، کوئی بچھڑنا تمہیں واپس تنہائی میں لے آتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم محبت کے قابل نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا دل کسی انسان سے بن جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر تم کسی انسان سے جڑ گئے تو تم ٹوٹ جاؤ گے، اس لیے وہ تمہیں ہر بار بچا لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل ٹوٹ گیا، مگر دراصل اللہ تمہارا دل اپنے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ شاید میرا دل لوگوں کے لیے نہیں بنا، شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں سیدھا اسی کی طرف لوٹ آؤں۔ یہ پہلی نشانی ہے جب تم بار بار محبت کرتے ہو، مگر ہر بار محبت تمہیں اللہ کے قریب لے آتی ہے، نہ کہ دنیا کے۔ دوسری نشانی، اللہ ایسے بندے کو رشتوں میں سکون نہیں دیتا، چاہے وہ کتنا ہی سچا، کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ تم چاہو گے کہ تمہارے آس پاس والے تمہیں سمجھے، تمہاری قربت میں راحت محسوس کرے، مگر تم دیکھو گے کہ جتنی قربت بڑھتی ہے اتنی ہی غلط فہمیاں بھی بڑھنے لگتی ہے۔ کبھی تمہارے احساسات کو کمزوری کہا جاتا ہے، کبھی تمہاری خاموشیوں کو غرور سمجھا جاتا ہے۔ تم رشتے نبھانے میں اپنی جان لگا دیتے ہو، لیکن بدلے میں صرف خاموشی ملتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تمہیں احساس تنہائی کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے نہیں، اس سے بات کرو۔ تم اپنی محبتیں دنیا سے نہیں، اس کے سامنے رکھو۔
और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। यह वो सुकून है जो किसी रिश्ते से नहीं आता। यह वो मोहब्बत है जो सिर्फ रब से मिलती है। दूसरी निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हें हर उस जगह से थकाता है जहाँ तुमने सुकून तलाश किया, ताकि तुम आखिरकार समझ जाओ कि तुम्हारा सुकून लोगों में नहीं, अल्लाह में है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह दुनिया में किसी का नहीं बनने देता। वो चाहे भी तो किसी के नहीं हो पाते, क्योंकि अल्लाह उन्हें सिर्फ अपने लिए चुन लेता है। और शायद यही सबसे बड़ी मोहब्बत है, जब अल्लाह खुद तुम्हें लोगों से दूर करके अपने करीब ले आता है। खामोशी जैसे दिल खुद से कह रहा हो, शायद मैं उन्हीं में से हूँ जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए रखा है, जिन्हें किसी की मौजूदगी से नहीं, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ज़िंदगी महसूस होती है। ये वो लोग होते हैं जिनके नसीब में एक अजीब सी तन्हाई लिखी जाती है, मगर यह तन्हाई सज़ा नहीं होती, यह अल्लाह की तरफ बुलाने वाला पैगाम होता है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो पहले उसके इर्द गिर्द की आवाज़ें खामोश कर देता है। रिश्ते, ताल्लुक, मोहब्बतें सब एक एक करके दूर होने लगते हैं और बंदे के दिल में सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मगर हकीकत यह है कि आखिर नहीं बल्कि आगाज़ होता है अल्लाह के साथ एक नए रिश्ते का। तीसरी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे के दिल को नाशुरेपन से बचा लेता है। चाहे हालात कैसे भी हो, दुनिया के हिसाब से सब कुछ बिगड़ा हुआ लगता है, काम रुके हुए, ख्वाब टूटे हुए, दिल बिखरा हुआ, मगर इसके बावजूद उस बंदे के दिल में एक छोटी सी रोशनी बाकी रहती है। वो कहता है, मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। यह वो ईमान है जो अल्लाह खुद उनके दिल में रख देता है। लोग हैरान होते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद यह शख्स इतना मुतमईन कैसे है, मगर वह नहीं जानते कि उसके दिल में अल्लाह का यकीन जाग चुका है। यह तीसरी निशानी है, अल्लाह ऐसे बंदे के दिल में ऐसा ईमान डाल देता है जो तूफान में भी नहीं डोलता। चौथी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे को इंतज़ार में आजमाता है। तुम दुआएं करते हो, बहुत रोते हो, सजदों में अपने दिल की सारी थकान रख देते हो, मगर जवाब फौरन नहीं आता। दिन गुजरते हैं, महीने, साल, और तुम सोचते हो क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मगर अल्लाह उस लम्हे तुम्हें सब्र सिखा रहा होता है। वो तुम्हें तैयार कर रहा होता है उस चीज़ के लिए जिसके लिए तुम्हारे दिल का मजबूत होना ज़रूरी है। एक फ़कीर ने एक बार कहा था, अल्लाह जब किसी दिल को देर से देता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह चीज़ मामूली नहीं बल्कि खास होती है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता, बस वह वक्त चुनता है ताकि तुम समझ सको कि नियामत नहीं, राब्ता असल मकसद था। यह चौथी निशानी है कि तुम जितना इंतज़ार करते हो उतना ही अल्लाह तुम्हारे अंदर यकीन पैदा करता है। पांचवी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे को खामोशी में जवाब देना सिखा देता है। तुम्हारे दिल के अंदर एक लम्हा आता है जहाँ तुम किसी से शिकायत नहीं करते, ना किसी से बात, ना कोई वजहात, बस खामोश रहते हो और दिल में कहते हो, या अल्लाह तू देख रहा है, यही काफ़ी है। यह वह कैफियत है जो आम लोग नहीं समझते। यह खामोशी कमज़ोरी नहीं, यह यकीन की वो मंजिल है जहाँ बंदे अब सिर्फ अल्लाह से बात करते हैं और यह खामोशी दुआ बनकर अर्श तक पहुँच जाती है। यह पांचवी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें लोगों के जवाब से काट कर अपने जवाब पर कनात सिखा देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो तन्हा रह गए वो बदकिस्मत है, मगर हकीकत यह है कि
अल्लाह ने उन्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया होता है। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया के शोर में भी अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। वह हर बार टूटकर फिर उसी दर पर लौट आते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे से कहता है तो मेरा है, तो दुनिया के सब दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं सिवाय एक दरवाजे के जो सीधा उसके रब तक जाता है। यह वो मुकाम है जहाँ बंदे को दुनिया से खफा नहीं बल्कि दुनिया से आज़ाद कर दिया जाता है। और शायद तुम उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है, जिनके दिल में अब कोई गिला नहीं, बस एक सुकून है कि जो कुछ छीना वो दुनिया थी और जो बाकी है वो अल्लाह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह हमसे सब कुछ छीन लेता है। मोहब्बत, रिश्ते, ख्वाब, उम्मीदें सब एक एक करके टूटने लगते हैं और हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह नाराज़ नहीं होता, वो बुलाता है। अल्लाह जब अपने बंदे से ख़ास मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की मोहब्बतों से खाली कर देता है ताकि उसके दिल में सिर्फ एक मोहब्बत बाकी रहे, अल्लाह की। यही वह मुकाम है जहाँ रूह की असली ज़िंदगी शुरू होती है, जहाँ बंदा समझने लगता है कि सुकून किसी के पास नहीं बल्कि कुर्ब इलाही के लम्हे में छुपा है। छठी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे को अपनी कुर्बत का जायका चखा देता है। यह कुर्ब ना आँखों से देखा जा सकता है, ना अल्फाज में बयान किया जा सकता है। यह वो लम्हा होता है जब सजदे में दिल रो पड़ता है और आंसुओं के साथ एक एहसास उतरता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। फिर कोई दुख बड़ा नहीं लगता, कोई जख्म बोझ नहीं लगता, अंदर एक सुकून उतरने लगता है, जैसे दिल में खुद अल्लाह ने सुकून लिख दिया हो। कुरान कहता है, याद रखो दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। यह आयत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, यह उन दिलों की कहानी है जो टूटकर अल्लाह के करीब आए, जो रोते रोते एक दिन हंसने लगे क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि जिसने सब कुछ छीना वही तो सब कुछ लौट आने वाला है। एक फ़कीर ने कहा था, अल्लाह का कुर्ब कोई मकाम नहीं, एक कैफियत है। जब दिल को अल्लाह काफ़ी लगने लगे तो समझ लो तुम्हें दुनिया से आज़ाद कर दिया गया है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं रहता, ना तारीफ़, ना रिश्ता, ना दुनिया की इज्जत। उन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, अल्लाह की रज़ा। वो रातों में उठकर रोते हैं, मगर रोना शिकायत का नहीं होता, मोहब्बत का होता है। वो कहते हैं, या अल्लाह मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगता, बस तू राजी रहना। ये वो रूहानी मुकाम है जहाँ दिल मोहब्बत का तलबगार नहीं रहता बल्कि मोहब्बत का मज़हर बन जाता है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे को यह मुकाम देता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो कम बोलने लगता है, ज़्यादा सोचने लगता है। लोग समझते हैं शायद वो खामोश है, मगर हकीकत यह है कि वो अल्लाह की बातें सुन रहा होता है। ये कुर्ब ऐसा है कि बंदा दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर चला जाता है। उसे समझ आ जाती है कि सुकून का रिश्ता सिर्फ अल्लाह के साथ है। वह अब मोहब्बत में भी अल्लाह को देखता है, गम में भी, खुशी में भी। और एक दिन वह दिल यह हकीकत मान लेता है कि अल्लाह ने अगर दुनिया छीनी तो दरअसल अपना कुर्ब दे दिया, और जो कुर्ब दिया वो किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि दुनिया की मोहब्बतों में जुदाई है मगर अल्लाह की मोहब्बत में हमेशा की राहत है। दुनिया के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं मगर रब का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। अल्लाह तुम्हें थोड़ा रुलाता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ, फिर वो तुम्हारे ज़ख्मों में खुद सुकून भर देता है। फिर वो तुम्हें वो देखने की ताकत देता है जो दुनिया नहीं देख सकती, कि तुम्हारा टूटना दरअसल तुम्हारा कुर्ब में उठाया जाना था। यह वो मुकाम है जहाँ दिल कहता है, मेरे रब किसी की कमी नहीं। यह वो बंदगी है
जिसमें आंसू इबादत बन जाते हैं, खामोशी दुआ बन जाती है और दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ झुक जाता है। या अल्लाह, जो दिल टूटे हैं उन्हें अपने कुर्ब से भर दे। जिन्हें दुनिया ने खाली छोड़ दिया है उनके अंदर अपना सुकून उतार दे। जिन्हें किसी ने नहीं समझा उन्हें तो समझ ले, और जिन्हें दुनिया ने अकेला किया उन्हें अपनी मोहब्बत का सहारा दे। या अल्लाह, हमें तो बस अपना बना ले, हम तुझसे जुड़ जाए और तुझसे कभी जुदा ना हो। आमीन। रिहा मरकज़ एक ऐसा रूहानी सफ़र है जहाँ हम दुनिया के दुखों में अल्लाह की मोहब्बत तलाश करते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक दावत है कि तुम भी लौट आओ उस रब की तरफ जो तुम्हें हर हाल में चाहता है। यह वो जगह है जहाँ हम दिल से बात करते हैं और अल्लाह से जुड़ने की रोशनी फैलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कभी लगे कि लोग समझ नहीं पाए तो मायूस मत होना। शायद अल्लाह खुद तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दावत है कि लौट आओ उस रब की तरफ जो तुम्हें हर हाल में चाहता है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करें और हमारे चैनल रिहा मरकज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर रूहानी पैगाम आप तक पहुंचता रहे। फी आमानिल्लाह।